Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes, and in a series we are discussing about Right to Information Act. In this session we will concentrate upon functions of APIO, PIO, CPIO. They are functionaries of this act. So we are going to concentrate upon the functions of APIO, PIO and CPIO. So receiving and managing application, it mentions that RTI laws have always required that specific officers within each public body covered by the law is given the responsibility for receiving and managing RTI application with their organization. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये फिक्स किया गया है कि स्पेसिफिक ऑफिसर, स्पेसिफिक सेल, स्पेसिफिक ब्रांच विद डील विद द RTI एप्लीकेशन. द सेंट्रल एक्ट गिव्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. जिस ऑफिस को डेजिग्नेट किया गया है, जिस ऑफिसर को डेजिग्नेट कर दिया गया है RTI के लिए, उस ऑफिसर का नाम है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO. In short, it is called PIO, who are responsible for receiving and managing RTI applications. Then, assistant public information officers of APIO, who are responsible only for receiving application and passing them on to PIO. So, try to understand. If application is received by PIO, he will receive also and he will manage also. But if it is received by APIO, he is only receiving the application and he will forward the application to PIO. So ultimately public information officer is responsible for dissemination of information under RTI Act. One of the first duties of APIO and or PIO is to receive information request. जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है, जो एप्लीकेशन है, उसको रिसीव करना है. सेक्शन 6(1) ऑफ द सेंट्रल एक्ट also specifically places a duty on these officials to assist the information requesters to complete their application for information properly. So सिर्फ रिसीव ही नहीं करना है. अगर कोई कंटेक्ट करता है कि मुझे RTI एप्लीकेशन फ़ाइल करना है, मुझे नहीं आता कि कैसे फ़ाइल करना है, उनको असिस्ट भी करना है. वी नीड टू असिस्ट देम ऑल्सो. इफ़ एन एप्लीकेशन इज प्रॉपरली ड्राफ्टेड, most of the rules made under the central act require these officers to provide request with the receipt acknowledgement of their application, which will enable the requester more easily follow the request up at the later date. So ये जो लॉ है ये फर्दर PIO APIO पर ये ड्यूटी डालता है कि जितने भी एप्लीकेशन हम रिसीव कर रहे हैं उनका एक एक्नॉलेजमेंट भी हम इशू करें. Even if the relevant rules do not require this, in the spirit of proper implementation of the law, a receipt should be given to all requesters. सो भले रूल क्या कहता है वो सब ठीक है, लेकिन एक कॉमन सेंस की एक ड्यूटी बनती है कि अगर लॉ को फॉलो करना है तो एक एक्नॉलेजमेंट देना ही चाहिए. ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है तो उसमें एक्नॉलेजमेंट ऑटो जनरेट हो जाता है. फंक्शनिंग्स ऑफ CPIO चेकलिस्ट. सो रिसीविंग एप्लीकेशन, first of all he receives the application, then assisting application under section 2(2). so अगर किसी का एप्लीकेशन ड्राफ्टेड है उसको रिसीव कर लिए. कोई अगर ऐसा आ रहा है जिसको हेल्प चाहिए कि सर मुझे एप्लीकेशन भरने नहीं आता, आप मुझे बता दीजिए थोड़ा, CPIO एंड हिज स्टाफ हैज़ टू असिस्ट दैट एप्लीकेंट आल्सो. ठीक है. और अगर वो एप्लीकेशन, चाहे वो जो एप्लीकेशन है, जो RTI रिक्वायरमेंट है, वो अगर उनके द्वारा डील नहीं होता है तो ऐसे केस में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ट्रांसफ़र भी करने का रूल है. राइट. फंक्शंस ऑफ CPIO चेकलिस्ट. सो रिसीविंग एप्लीकेशन,
असिस्टिंग एप्लीकेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर 3 हम लेकर के चल रहे हैं। तो फर्स्ट जो है रिसीविंग एप्लीकेशन है, ये देखिए ये रिसीविंग एप्लीकेशन, असिस्टिंग एप्लीकेशन, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। अभी हम रिसीविंग एप्लीकेशन का डिटेल देखते हैं। सो रिसीविंग एप्लीकेशन में द CPIO receives the application for RTI along with fee. If the applicant is from the PPL category, she is exempted from paying any fee. So जब भी एप्लीकेशन रिसीव करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि उसके साथ फ़ी अटैच है कि नहीं है। अगर फ़ी अटैच नहीं है तो हो सकता है कि वो BPL कैटेगरी का है, तो उससे रिलेटेड उसका प्रूफ भी लेना है, राइट। नेक्स्ट, the CPIO needs to check for information availability and if it is disclosable. जब एप्लीकेशन रिसीव कर लिए, फ़ी वगैरह सब साथ में है, इन ऑर्डर में है, तब CPIO की ड्यूटी होती है कि सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाए जो ये मांग रहे हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, लेना चाहते हैं, वेदर दैट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद अस और नॉट अवेलेबल। लेटर ऑन इफ द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, then whether this information is disclosable or not. That is most important. That is the turning point. If it is disclosable, then further course of action will start. If it is non-disclosable, information तो है, हम रिप्लाई उसका नहीं दे सकते, तो नॉन डिस्क्लोजेबल हो गया। और इन्फॉर्मेशन है, हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो डिस्क्लोजेबल हो गया। ये चेक करना है। If the information is available and can be disclosed, the RTI application is forwarded to the concerned district public information officer. So here DPIO is also there. DPIO stands for District Public Information Officer. District Public Information के ऑफिसर के पास ये यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, राइट। The DPIO needs to inform the cost of information to the applicant and collect the additional fee if any. So the applicant might have sought copies of certain papers. So as per rule, he has to pay certain fees, certain charges for obtaining the copies. So whether that fee has been received or not, that DPIO has to confirm. DPIO को ये चेक करना है, अगर नहीं रिसीव हुआ है तो देन ही विल इंटीमेट हिम टू पे दिस मच अमाउंट। वंस ही गेट्स, देन ओनली फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कैन बी स्टार्टेड। द एप्लीकेंट कैन देन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। इफ ही हैज सबमिटेड द एडिशनल फी ऑल्सो, देन नाउ एप्लीकेंट कैन देन collect the information. This is all about receiving information. Now assisting application. The DPIO should render all reasonable assistance to the applicant making request orally to reduce in writing. Also the applicant should be allowed to inspect the application. ठीक है। सो जो DPIO है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ये इनकी एक ड्यूटी ये भी है कि अगर एप्लीकेंट से एप्लीकेशन नहीं भरा जा रहा है तो एप्लीकेंट को असिस्ट करेंगे एप्लीकेशन भरने के लिए। अब ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन देखते हैं। एन RTI एप्लीकेशन कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सो ट्रांसफ़र के ये सिर्फ कंडीशन नीचे दिए हुए हैं। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू another public authority and subject matter of application is more closely connected to other public authority. So दो कंडीशन है जिसमें हम एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर देते हैं। हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है दैट इज़ अवेलेबल विद अनदर पब्लिक अथॉरिटी, उनके पास भेज देंगे। जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पर एप्लीकेशन मांगा, जो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, इट इज़ मोर क्लोजली कनेक्टेड टू अदर पब्लिक अथॉरिटी। तो ऐसे में जिस पब्लिक अथॉरिटी के पास ये इन्फॉर्मेशन है, जिस पब्लिक अथॉरिटी से ये क्लोजली कनेक्टेड है, वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। द CPIO may transfer the application either partly or fully as needed and inform the applicant accordingly. ट्रांसफ़र करेंगे तो एप्लीकेंट को बताना भी है, और इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन CPIO भी शेयर कर सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन DPIO शेयर कर सकते हैं। तो पार्टली और फुली कैसा होगा वो भी एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करना है। नाउ फंक्शंस ऑफ
PIO, APIO एंड DPIO. सो फंक्शन ऑफ PIO क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का क्या है, हैंडल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड रीजनेबल असिस्टेंस टू द इंफॉर्मेशन सीकर. ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसीव करना है और उनको फिलअप करने में हेल्प करना है. सीक असिस्टेंस अंडर सेक्शन 5(3) एंड 5(4) फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज. render all reasonable assistance to the person making the request orally to put it into writing. राइटिंग में लिखने का भी हेल्प करना है. डिस्पोज ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बाय आइदर प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन और पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फी विद इन द टाइम लिमिट. सो डिस्पोज ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय आइदर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन है तो प्रोवाइड करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो एडिशनल फी लेना है. विद इन द टाइम फ्रेम रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर रीजन्स टू बी स्पेसिफाइड within the time period stipulated under section 7(1). So section 7(1) में टाइम स्टिपुलेशन दिया हुआ है. Also provide reason for rejection and appeal details. जब भी रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्शन का रीजन भी मेंशन करना है एंड अपीलेट अथॉरिटी के डिटेल्स भी देना है, एड्रेस भी देना है, सो दैट इफ ही डिजायर्स ही कैन गो टू appellate authority also. Provide information free of cost beyond 30 days as per section 7(3). So as per section 7(3), the prescribed fee is required only and only if that information is disclosed within 30 days. If 30 days period is over, then the applicant is eligible to get the information free of cost. प्रोवाइड डिटेल्स इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट. अगर रिजेक्ट कर देते हैं उसका भी डिटेल हमें प्रोवाइड करना है. दिस इज ऑल अबाउट PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. ये जितने भी पॉइंट है ये सब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अब APIO का जान लेते हैं. एक्सेप्ट द एप्लीकेशन एंड अपील. APIO क्या करेंगे, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे. सेंड द एप्लीकेशन टू CPIO. सो APIO सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनके पास डिस्पोजल करने का पावर नहीं है. सो ही इज ओनली असिस्टेंट टू PIO. सो APIO विल सेंड द एप्लीकेशन टू CPIO. देन फॉरवर्ड द अपील टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी विद इन 5 days. अगर अपील का एप्लीकेशन है तो जैसे मिलता है विद इन 5 days इसको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास भेज देना है. ये APIO, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम है. नेक्स्ट DPIO. DPIO डिस्ट्रिक्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द PIO. मतलब DPIO को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को असिस्ट करना है. ट्रीटेड एज PIO फॉर द पर्पस ऑफ एनी कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अंडर सेक्शन 5(5). सेक्शन 5(5) में स्पेशल प्रोविजन में DPIO को PIO भी ट्रीट किया जा सकता है. क्या रिमेंबर करना है, क्या नोट करना है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इफ एन APIO रिसीव्स एन एप्लीकेशन दे मस्ट फॉरवर्ड इट टू द रिलेवेंट PIO इमीडिएटली. एप्लीकेशन को अपने ड्रायर में नहीं रखना है, सेंड इट टू, फॉरवर्ड इट टू PIO. अगर हार्ड कॉपी है तो, ऑनलाइन है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं भेजने में. The RTI Act allows the PIO only 5 extra days over and above the limit of 30 days to give information to the applicant if the request is forwarded through the APIO. So, it is important to send the application to the PIO without any delay. So, क्या होता है अगर APIO के पास एप्लीकेशन जमा होता है तो एडिशनल 5 days मिलते हैं एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए. इसलिए APIO की ड्यूटी बनती है कि विदाउट एनी डिले ही शुड फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द PIO. APIO के पास इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का पावर नहीं है. द APIO मस्ट फॉरवर्ड ऑल अपील्स रिसीव्ड बाय हिम टू द कंसर्न्ड अपीलेट अथॉरिटी और इंफॉर्मेशन कमीशन इमीडिएटली. APIO अगर कोई अपील का एप्लीकेशन मिलता है इनको तो इनको इमीडिएटली उसको कंसर्न्ड अपीलेट अथॉरिटी के पास और चाहे इंफॉर्मेशन कमीशन के पास इमीडिएटली विदाउट एनी डिले भेजना है.
the citizen has the right to send a complaint to the Information Commission if the APIO or PIO does not accept his application. So ये गलती तो करना ही नहीं है. अगर एप्लीकेशन कोई दे रहा है वी हैव टू एक्सेप्ट इट. नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक ग्राउंड बन जाएगा कंप्लेन करने का. और इफ प्रूवन गिल्टी द APIO or PIO may be fined from a minimum of rupees 250 to a maximum of rupees 25,000 for each offence. MCQ question. Minimum 250 rupees penalty और maximum 25,000 rupees penalty for each offence APIO and PIO is liable. इसलिए क्या करना है? We have to disseminate the information within the prescribed time limit only, right? So in this way we came to know the various functions of APIO, PIO, DPIO, CPIO. Hope this information is useful for you. Please do like, subscribe and share the YouTube channel SCKG Studies. Another channel is SCKG 2.22 on which RTI classes are being uploaded. Please do like, subscribe and share this channel also. Those who have not subscribed, they can put like this subscribe. This is a like, comment, subscribe and